everyone, welcome again in your English Kaksha. Today we will start 5th chapter of your snapshot book, that is Mother's Day, and is written by J.B. Priestley. The following play is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. Let's read on to see how Mrs. Pearson's family react when she tries to stand up for her own rights. This chapter is actually a play and it is presented in a very humorous way. What it is showing? It is showing the status of the mother in a family. इसमें मदर के स्टेटस के बारे में बताया गया है कि कैसे जो बच्चे हैं या जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मदर को कैसे ट्रीट करते हैं. लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिसेस पियर्सन्स फैमिली रिएक्ट व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स. और मिसेस पियर्सन जब अपने अधिकारों की बात करती है, अपने राइट्स की बात करती है, तब उसके फैमिली मेम्बर्स उसको कैसा रिएक्शन देते हैं. दैट इज गिवन इन दिस chapter, that is here is called a play. So let's read what are the main characters that we are going to read about in this play. First is Mrs. Annie Pearson, that is the main character. George Pearson is the name of her husband. Doris is the girl, daughter of Mrs. Pearson and Mr. George Pearson. And Cyril is her son. Mrs. Fitzgerald is her neighbor. Here the action takes place in the living room of Mrs. Pearson's house in a London suburb. Suburb means small town. Here जो सीन है वो बताया गया है कि वो कैसे और कहाँ सेटअप किया गया है. मिसेस पियर्सन के लिविंग रूम में जब मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जगेरल्ड दोनों आपस में बात कर रही थी, ये उसका सीन बताया गया है. एंड ऑल द सेटअप थिंग्स आर गिवन हियर in the lines that are just given under this. Time is also presented, that is the present, means the story is given in the present tense. And on the next page we will see what kind of personalities are Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald. We will read from this line. Here Mrs. Fitzgerald and Mrs. Pearson were sitting at the small table on which are 2 teacups and a saucer and the cards with which Mrs. Pearson has been telling Mrs. Pearson's fortune. Actually, Mrs. Fitzgerald was a fortune teller. She was a tarot card reader and with the card she was going to tell the fortune of Mrs. Pearson. जो कार्ड देख के भाग्य बताते हैं ना, वो थी वो. And Mrs. Pearson is a pleasant but worried looking woman in her 40s. Mrs. Pearson जो कि 40 years की थी, देखने में बहुत ही सुंदर थी लेकिन हमेशा दुखी रहती थी, बहुत परेशान रहती थी. And Mrs. Fitzgerald is older, heavier and a strong and sinister personality. And comparative to her personality, Mrs. Pearson is older, heavier, heavy in body and strong in her decision, in her voice, in everything. She was a sinister personality. She is smoking. Mrs. Fitzgerald is smoking here at this scene. It is very important that these two should have sharply contrasted voices. Means if we are going to stage this play, then these things are required. As it is a play, so now we will read the dialogues what are being given in this play. First is the dialogue of Mrs. Pearson, Mrs. Fitzgerald, who was talking to Mrs. Pearson and she was telling what she was telling. And that's all I can tell you, Mrs. Pearson. Could be a good fortune, could be a bad one. All depends on yourself now. Make up your mind and there it is. जैसे ही मिसेस फिट्जगेरल्ड मिसेस पियर्सन को उसके भाग्य के बारे में बताती है और वो कार्ड्स को थोड़ा सा मूव करने लगती है, शफल करने लगती है, तो उसको कहती है कि देखो मैं तुम्हें अभी बता दूंगी कि तुम्हारा फॉर्च्यून कैसा है. ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, बट सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है. इसलिए जल्दी से अपना माइंड बना लो और देखो कैसा है तुम्हारा भविष्य. मिसेस पियर्सन, येस थैंक यू मिसेस फिट्जगेरल्ड, आई एम मच obliged. आई एम श्योर इट इज़ वंडरफुल having a real fortune teller living next door. Did you learn that out east too? Here Mrs. Pearson उसको थैंक यू बोलती है, कहती कि मैं बहुत तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसी नेबर जो है, जो कि फॉर्च्यून टेलर है और मेरे बिल्कुल घर के पास रहती है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है. अब आप मुझे ये बताओ कि आपने ये जो फॉर्च्यून टेलिंग की जो आर्ट है, क्या ये आपने ईस्ट में सीखी है? तब मिसेस फिट्जगेरल्ड उसको बताती है कि येस आई डिड, मैंने सीखा है. 12 years आई हैड ऑफ इट, और 12 years मैंने इसकी प्रैक्टिस भी की है. विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी अ लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर. उसके जो हस्बैंड है वो लेफ्टिनेंट थे. एंड शी वॉज सेइंग विद माई हस्बैंड आई हैव प्रैक्टिस्ड इट ऑल्सो एंड ही लर्नड अ लॉट एंड आई लर्नड अ लॉट मोर.
उसने भी बहुत सीखा और मैंने उससे ज़्यादा सीखा. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? Put your foot down once and for all and be the mistress of your own house and the boss of your family. कहते हैं कि जब जल्दी से अब तुम तैयार हो जाओ अपने घर की और अपने परिवार की बॉस बनने के लिए. Mrs. Pearson smiling apologetically. Apologetically means she was feeling very sorry, but she was giving a smile also on her face. That's easier said than done. Mrs. Pearson कहती है कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है. Besides, I am so fond of them even if they are so thoughtless and selfish, they don't mean to be. कहती है कि मैं उन सबको बहुत पसंद करती हूँ, चाहे वो मेरे बारे में ना सोचते हों, चाहे वो सेल्फिश हों, लेकिन उनका वो मतलब नहीं होता जिस तरह से वो मुझे ट्रीट करते हैं. आप भी अपने घर में क्या करते हो, मदर को कोई काम बोलती हैं तो आप भी दौड़ कर बोलते हो कि अभी भी तो आए हम स्कूल से, हम क्यों करें, आप क्या करती हो सारा दिन. तो यही जो चीज़ें हैं, ये जो बिहेवियर है, दैट एक्चुअली हर्ट्स अ मदर. एंड दिस इज गिवन द सेम थिंग इन दिस प्ले. Cutting in may not be, but it would be better for them if they learned to treat you properly. मिसेस फिट्जगेरल्ड उसकी बात को काट देती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता. ये अच्छा होगा कि तुम उन्हें सिखाओ कि उन्हें तुमसे कैसे ट्रीट करना है. Yes, I suppose it would be in a way. मिसेस पियर्सन कहती है हाँ मुझे भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए. No doubt about it all. Who is the better for being spoiled? Grown man, lad or girl? मिसेस फिट्जगेरल्ड पूछती है कि मुझे ये बताओ सबसे बिगड़ैलू कौन है, सबसे बिगड़ा हुआ कौन है. ग्रॉन मैन, बूढ़ा आदमी. बूढ़ा आदमी कौन है यहाँ पे? मिस्टर जॉर्ज पियर्सन को वो ग्रॉन मैन बोलती है. लैड मीन्स सिरिल. लैड मीन्स अ बॉय एंड सिरिल जो था वहाँ पे एक बॉय है. एंड डोरिस द गर्ल. कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि वो बॉय ज़्यादा बिगड़ा हुआ है या गर्ल ज़्यादा बिगड़ी हुई है. नोबडी, या कोई नहीं. You think it doesn't them good when you run after them all the time, take their orders as if you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves. Never in all your life. It is the ruin of them as well as you. Husbands, sons, daughters should be taking notice of wives on mothers, not giving them orders and treating them like dirt. And don't tell me you don't know what I mean, for I know more than you have told me. कहती है कि मुझे लगता है कि हस्बैंड को, वाइफ को या डॉटर्स को अपनी मदर की और हस्बैंड्स को अपनी वाइफ की परवाह करनी चाहिए और सन्स को अपनी मदर की परवाह करनी चाहिए और उन्हें कभी भी एक डर्ट की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए. मीन्स कि वो घर में पड़ी रहें, सारा दिन काम करती रहें और वो इधर उधर घूमते रहें. और कहती है कि जितना तुमने मुझे बताया है उससे ज़्यादा तो मुझे ही पता है कि तुम्हारे साथ कैसा बिहेव होता है. पियर्सन, डब्वियसली आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट. कहती नहीं, मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ. हिंट, इट इज़ मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स. कहती हिंट देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी फैमिली को उससे भी ज़्यादा की नीड है. मीन्स कि तुम्हारी फैमिली को और ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है. मिसेस पियर्सन, डब्वियसली मीन्स डाउटफुली. आई सपोज इट इज़, बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस and it is so hard to know where to start. I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. She glances at her watch or at a clock. Oh, good gracious, look at the time, nothing ready and they will be home any minute and probably all in a hurry to go out again. बात करते करते वो एकदम से वॉच की तरफ और फिर क्लॉक की तरफ देखती है और कहती है ओ माय गॉड, देखो कितना टाइम हो गया और कुछ भी रेडी नहीं है. वो लोग किसी भी मिनट घर आते होंगे और आने से पहले उन्हें जाने की होती है. नाउ वी विल सी व्हाट इज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. As she is about to rise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down. जैसे ही वो उठने लगती है मिसेस पियर्सन उसको पकड़ के बिठा लेती है और क्या कहती है? Let them wait or look after themselves for once. कहती है रुको, कुछ देर उन्हें वेट भी करने दो. This is where your foot goes down. यहीं से तुम्हें स्टार्ट करना है. Start now. She lights a cigarette from the one she has just finished. एक सिगरेट पीते पीते वो दूसरी जला लेती है. Mrs. Pearson, embarrassed. Mrs. Fitzgerald, I know you mean well. In fact, I agree with you, but I just can't. And it's no use you trying to make me. If I promise you, I would really have it out with them. I know I wouldn't be able to keep my promise.
तो मिसेस पियर्सन कहती है देखो जो भी तुम मुझे समझा रही हो मुझे पता है, मैं उसे अग्री करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। देन लेट मी डू इट, मिसेस फिट्जगेरल्ड कहती है तो फिर मुझे करने दो। फ्लस्टर्ड, ओ नो थैंक यू वेरी मच मिसेस फिट्जगेरल्ड, बट दैट वुडंट डू एट ऑल। कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तुमने इतना सोचा वही काफ़ी है। इट कुडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स, और कोई दूसरा करे तो ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगी। एंड रियली आई कुडंट ब्लेम दैम, और मैं कभी भी उन पर कोई ब्लेम नहीं लगाना चाहती। देम एक्चुअली देम रेफर्स टू द फैमिली मेम्बर्स ऑफ मिसेस पियर्सन। I know I ought to do it, but you see how it is. She looks apologetically across the table, smiling rather miserably. और वो टेबल के पास जहाँ वो खड़ी हुई थी स्माइल करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके फेस पे वो दुख नज़र आता है। मिसेस फिट्जगेरल्ड कूली, यू हैवंट गॉट द आइडिया। मिसेस फिट्जगेरल्ड जो कि सिगरेट पी रही होती है और कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें मेरा आइडिया समझ में नहीं आया। बिविल्डर्ड मीन्स सरप्राइज, और वो बड़ी हैरान हो जाती है। ओह आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट। तुमने कहा कि तुम ये करना चाहती हो। आई डिड, कहती मैंने ऐसा ही कहा, बट नॉट एज मी एज यू, कहती वैसे नहीं जैसी मैं हूँ, लेकिन तुम बनकर। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मी। मिसेस पियर्सन कहती मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि तुम तो मैं नहीं बन सकती। कूली, वी चेंज प्लेसेस और रियली बॉडीज, यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू, बट दैट्स इम्पॉसिबल। How do you know? Ever tried it? No, of course not. Here Mrs. Fitzgerald was talking about the exchanging of personalities. वो कहती है कि हम अपनी जगह चेंज कर लेंगे, हम अपनी पर्सनैलिटीज़ चेंज कर लेंगे, मैं तुम बन जाएंगी और तुम मैं बन जाएंगी, और फिर इस तरह से हम कर सकते हैं। मिसेस पियर्सन कहती है कि नो ऐसा नहीं हो सकता। मिसेस फिट्जगेरल्ड सेड बट दैट हाउ डू यू नो, कि तुम्हें कैसे पता कि नहीं हो सकता, क्या तुमने कभी किया है? नहीं, कभी नहीं। I have, not for some time, but it still ought to work. कहती है लेकिन मैंने किया है, कुछ वक्त के लिए काम करता है। Won't last long, but long enough for what we want to do. कहती लंबे टाइम के लिए हम ये नहीं करेंगे, तब तक करेंगे जब तक हम ये करना चाहते हैं। Learnt it out east, of course, where they are up to all these tricks. She holds her hands out across the table, keeping the cigarette in her mouth. Give me your hand, dear. Well, I don't know, is it right? तब वो कहती है देखो मुझ पर विश्वास करो और मुझे अपना हाथ दो। और फिर मिसेस पियर्सन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये सही है, मुझे नहीं पता। मिसेस फिट्जगेरल्ड, इट्स योर ओनली चांस, सिर्फ यही एक मौका है तुम्हारे पास। गिव मी योर हैंड एंड कीप क्वाइट अ मिनट, जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। टेकिंग हर हैंड्स, नाउ लुक एट मी। दे स्टेयर एट ईच अदर मटरिंग आस्ट्राडम आस्ट्राडलैम आस्ट्रा लैम ट्रैम बोना। तभी वो धीरे धीरे उस मंत्र को बोलती है और उसका हाथ पकड़कर वो मंत्र शुरू कर देती है। और उसके बाद ये सीन बताया गया है कि कैसे वो छोटा सा सीन किया जाता है और उन दोनों की पर्सनैलिटीज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं। आफ्टर दैट मिसेस पियर्सन, नाउ विद मिसेस फिट्जगेरल्ड्स पर्सनैलिटी, सी व्हाट आई मीन डियर। अब दोनों की पर्सनैलिटीज़ चेंज हो गई। मिसेस फिट्जगेरल्ड की बॉडी में मिसेस पियर्सन चली जाती हैं और मिसेस पियर्सन की बॉडी में मिसेस फिट्जगेरल्ड की स्पिरिट चली जाती है। आफ्टर दैट What happened? What I mean, dear, कहती है अब समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहती थी। She notices the cigarette here. You don't want that. जैसे ही मिसेस पियर्सन देखती है कि मिसेस फिट्जगेरल्ड उससे बात कर रही थी, तो वो उसकी मिसेस पियर्सन की बॉडी में थी, तो उसने मिसेस फिट्जगेरल्ड की बॉडी से वो सिगरेट निकाल ली। कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। She snatches it and puts it in her own mouth, puffing confidently. और फिर उसको कंटेंटेडली, और फिर वो उसको पीना शुरू कर देती है। मिसेस फिट्जगेरल्ड, नाउ विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी, लुक्स डाउन एट हर हरसेल्फ एंड सीज दैट हर बॉडी हैज चेंज एंड गिव्स अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट। और देखती है कि अब उन दोनों की बॉडी चेंज हो चुकी है। विद पियर्सन्स पर्सनैलिटी, ओह इट्स हैपेंड। मिसेस फिट्जगेरल्ड बोलती है कि ये हो गया। कंप्लेसेंटली, ऑफ कोर्स इट इज़ हैपेंड, वेरी नीट, डिडंट नो हाउ, और आई हैड इट इन मी। कहती है मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये सब कर सकती हूँ। बट वट एवर शैल आई डू मिसेस फिट्जगेरल्ड, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस। कहती है देखो जो भी मैं करने जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली और जॉर्ज जो है वो मुझे इस तरह से देखेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट, दे ऑल हैव मी टू डील विद, ओनली दे वॉन्ट नो इट। कहती वो तुम्हें नहीं देखेंगे, वो मुझे देखेंगे।
Still alarmed, but what if we cannot change back? It would be terrible. कहती है अगर हम बाद में चेंज ना हुए तो बहुत दुख होगा और बहुत बुरा होने वाला है. Here steady, कहती रुको. Mrs. Pearson, if you had to live my life, it wouldn't be so bad. अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मेरी जब लाइफ जियोगी तो ये इतनी भी बुरी नहीं है. You would have more fun as me than you have had as you. मेरी ज़िंदगी जीकर तुम और भी फन करोगी बजाय कि तुम्हारी अपनी से. Yes, but I don't want to be anybody else. कहती लेकिन मैं कोई और बनकर नहीं जीना चाहती. Now stop worrying, it's easier changing back. I can do it anytime we want. कहती कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, जब भी हम चेंज करना चाहेंगे हम कर लेंगे. Well, do it now. कहती अभी करो जो डिसाइड हुआ है. Okay. Then Mrs. Pearson said, not likely, अभी नहीं. I have got to deal with your family first. कहती मैं पहले तुम्हारी परिवार को सीधा करूंगी, उन्हें पहले सुधारूंगी. That's the idea, isn't it? कहती है कि यही तो आइडिया था, क्या ये नहीं था? Didn't know how to begin with them, you said. तुमने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि कैसे शुरुआत करनी है. Well, I will show you. तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या करना है. But what I am going to do? मिसेस पियर्सन जो कि मिसेस फिट्जगेरल्ड की बॉडी में थी तो उससे पूछते कि मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूँ. Go into my house for a bit, there is nobody there, and then pop back and see how we were doing. You ought to enjoy it. Better get off now before one of them comes. कहती तुम मेरे घर जाओ, वहाँ पर कोई नहीं है और वहाँ जाकर enjoy करो और थोड़ी देर बाद देखना कि हम आखिर क्या करने वाले हैं जब उनमें से कोई आएगा. मीन्स जैसे ही मिसेस पियर्सन की फैमिली मेम्बर्स आना शुरू करेंगे वो उसको कहती है कि तुम झाँक कर देखना कि हम मैं क्या करने वाली हूँ उनके साथ. मिसेस फिट्जगेरल्ड नर्वसली राइजिंग, यस आई सपोज दैट्स बेस्ट. यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट. मिसेस फिट्जगेरल्ड जो कि मिसेस पियर्सन बन गई थी अब कहती है कि मुझे उम्मीद है कि जो भी होगा ठीक ही होगा. चकलिंग, इट विल बी वंडरफुल. नाउ ऑफ यू गो डियर. कहती है जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा, अब तुम जाओ. मिसेस फिट्जगेरल्ड क्रॉसेज एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट लेफ्ट और हरसेल्फ. जैसे ही वो उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं वो वहाँ से चली जाती हैं. थोड़ी देर बाद जो कि 20 years एक गर्ल आती है. हियर इट इज़ गिवन अ गर्ल प्रिटी. शी इज़ प्रिटी in her early 20s who would be pleasant enough if she had not been spoilt. Spoilt means अगर वो बिगड़ी ना होती, उसकी आदतें बिगड़ी ना होती तो शायद वो और भी अच्छी लगती. And she was 20 years old. Who was that? She was Doris, the girl of Mrs. Pearson. Before she has taken anything in, Mum, you will have to iron my yellow silk. I must wear it tonight. कहती तुम्हें तो मेरी येलो सिल्क जो ड्रेस थी वो प्रेस करनी थी क्योंकि मुझे आज रात को उसे पहनना है. She now sees what is happening and she is astounded. वो देखती है कि क्या हो रहा था और वो हैरान हो जाती है. What are you doing? She moves down left center. और उसे देखकर वो बोलती है कि ये क्या हो रहा है. Mrs. Pearson now uses her ordinary voice, but her manner is not fluttering and apologetic, but cool and incisive. Mrs. Pearson कुछ बोलने लगती है लेकिन उसकी जो टोन थी वो apologetic नहीं थी, cool और incisive थी. क्या बोलती है? Not even looking up. उसकी तरफ देखती भी नहीं और क्या बोलती है? What would you think I am doing? Whitewashing the ceiling? कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ? Whitewashing कर रही हूँ? Still astounded, but you are smoking. डोरिस कहती है कि लेकिन आप सिगरेट पी रही हो. That's right dear, no law against it, is there? कहती हाँ, क्या इसके खिलाफ कोई कानून है? But I thought you didn't smoke. Then you thought wrong. कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम कभी पीती भी थी, लेकिन तुमने गलत सोचा. Are we having tea in kitchen? Have it where you like dear. तो डोरिस उसको पूछती है कि क्या किचन में चाय बनी हुई है, रेडी है? कहती है पी लो जहाँ से पीनी है. Do you mean it is not ready? तभी डोरिस को गुस्सा आ जाता है और वो पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि ये अभी तैयार भी नहीं है, चाय रेडी नहीं हुई. Yours is not, I have had all I want. कहती तुम्हारा कुछ भी रेडी नहीं है, मुझे जो लेना था मैं ले चुकी. Might go out later and get a square meal at the Clarendon. कहती है कि बाहर बाद में जाना, जो भी तुमने खाना वाना खाना है वो बाद में खाना. Hardly believing her ears, who might? कहती है कि might go out later, बाद में जा सकते हैं बाहर. Square meal at Clarendon. Here Clarendon is the name of the place where dinner or the meal can be taken, like a hotel. Here when Doris listened this word, she was not believing her ears and she said, who might? Who is going outside? Then she asked her mother.
आई माइट, हु वुड यू थिंक, कहती मैं जा सकती हूँ, तुमने किसे सोचा? स्टेरिंग एट हर मम, व्हाट्स द मैटर विद यू, कहती क्या हो गया है तुम्हें? डोंट बी सिली, मत बनो, मुझे क्या हुआ? It's not me that is being silly, and I must say it's a bit much when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready. Did you hear what I said about my yellow silk? कहते हैं कि मैं पागल नहीं हो गई हूँ, मैं पूरा दिन काम करती हूँ और मैं आपको कह के गई थी कि मेरी येलो सिल्क ड्रेस जो है वो प्रेस कर देना, और आपने मेरे लिए चाय भी नहीं बनाई. नो आई डोंट यू लाइक इट नाउ, कहती है मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें करना है तो तुम खुद कर लो. आई नेवर डिड, मैं नहीं करूँगी. Of course I like it and I'm going to wear it tonight, so I want it iron. कहती I don't you like it now, मुझे लगा कि तुम उस येलो ड्रेस को पसंद नहीं करती. I never did, ना ही मुझे वो पसंद थी. But Doris said of course I like it, कि उसे वो ड्रेस पसंद है, and she is going to wear it tonight because she was going outside that night and she wanted it to be ironed by her mother. Want it ironed? What do you think it is going to do? Iron itself. कहती तुम्हें क्या लगता है? Who is going to do it? खुद कर लो. No, you are going to iron it for me. You always do. कहती है कि आप ही तो करते हो हमेशा, और आज ही आप भी कर दो. Well, this time I don't. कहती अब मैं नहीं करूँगी. And don't talk rubbish to me about working hard. और मुझे मत बताओ कि तुम सारा दिन काम करती हो. I have a good idea how much you do, Doris Pearson. I put in twice the hours you do and get no wages, no thanks for it. Why are you going to wear yellow silk? Where are you going? Slickly. Out with Charlie Spence. तो कहती है कि पहले तो मुझे ये बताओ कि मैं तुमसे ज़्यादा काम करती हूँ और मैंने कभी भी तुमसे कभी ना कोई थैंक्स लिया है, ना ही तुमसे कोई वेजेस मांगे हैं, और तुम ये येलो सिल्क ड्रेस क्यों पहनना चाहती हो? कहाँ जा रही हो? चार्ली के साथ बाहर? वाई? तब डोरिस उससे पूछती है कि क्यों? उसको कहती है कि क्यों जा रही हो चार्ली के साथ बाहर? तभी उसको गुस्सा आ जाता है. कहती है वाई आर यू आस्किंग? व्हाट इज़ द मैटर विद यू? वाई शुडंट आई गो विद चार्ली स्पेंस इफ़ ही आस्क मी एंड आई वॉन्ट टू? अगर मुझे चार्ली ने बाहर आने के लिए बोला है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? एनी ऑब्जेक्शंस? गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी. कहती अगर है तो बताओ. कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर? मिसेस पियर्सन जो है उसको बोलती है कि तुम्हें कोई ढंग का लड़का नहीं मिला? Wouldn't be seen dead with Charlie Spence, buck teeth and half-witted. कहती है कि ऊंचे दांत हैं उसके और बड़ा ही भद्दा सा लगता है वो देखने में, यही लड़का मिला था? He is not. कहती वो ऐसा नहीं है. When I was your age, I would have found somebody better than Charlie Spence or given myself up as a bad job. और कहती है कि मैं अगर तुम्हारी जितनी होती तो शायद मैं चार्ली स्पेंस से कोई अच्छा लड़का ढूंढती. Nearly in tears. Oh, shut up. तभी डोरिस को गुस्सा आ जाता है और वो रोने को हो जाती है और कहती है कि प्लीज़ अब आप चुप कर जाओ. एंड डोरिस रन्स आउट लेफ्ट. मिसेस पियर्सन chuckles and begins putting the cards together. After a moment, Cyril Pearson enters left and he is the masculine counterpart of Doris. Means डोरिस का जो ब्रदर था सिरिल वो अंदर आता है और फिर उसके साथ उसकी कैसी कॉन्वर्सेशन होती है हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. Hello mom, tea ready? No. Moving to the table annoyed. Why not? Coolly, I couldn't bother. Feeling of colors or something? Never felt better in my life. What's the idea then? Just a change. Well, snap out of it, ma, and get cracking. Haven't too much time. तभी सिरिल अपनी मदर से पूछता है कि चाय रेडी है? वो कहती है नहीं. क्यों नहीं? कहती बस मेरा मन नहीं था. कहते क्या हुआ? आज सब कुछ ठीक है? कैसा क्या हुआ है आपको? कहते हैं आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कुछ चेंज चाहती हूँ. तो कहते हैं ठीक है, चेंज वेंज छोड़ो और जल्दी से, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से चाय बनाओ. आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. कहते लेकिन मेरे पास बहुत टाइम है. येस बट आई हैवंट गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट मूविंग लेफ्ट टू द डोर एंड डिड यू पुट माई थिंग्स आउट? कहते क्या तुमने मेरी चीज़ें जो थी वो निकाल दी है? कांट रिमेंबर, याद ही नहीं था मुझे. बट आई डाउट इट. मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग. Now look, when I asked you this morning, you promised, you said you would have to look through them first in case there was any mending. कहता है कि जब सुबह मैंने आपको कहा था तो आपने मुझे कहा कि आप देखेंगी कि अगर उनमें कुछ मेंडिंग की नीड है. Yes, well now I have decided I don't like mending. तो कहती हाँ, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मुझे मेंडिंग पसंद नहीं है. That's a nice way to talk. What happened? What would happen if We all talk like this or that? कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है इस तरह से बात करना. अगर हम सब तुमसे इस तरह से बात करें तो क्या होगा?
You all do talk like that. There is something at home you don't want to. You don't do it. If it's something at your work, you get the union to bar it. Now all that happens is that you have joined the movement. कहता है तुम सब ऐसे, कहती है कि तुम सब ऐसे ही करते हो, जब तुम्हारा काम नहीं होता तो तुम इकट्ठे हो जाते हो. आई डोंट गेट दिस मैम, व्हाट्स गोइंग ऑन. कहता है ये क्या हो गया है आपको, क्या हुआ है. लैकॉनिक एंड सिनिस्टर चेंजेस, तभी वो चेंज हो जाती है. कहती है कि कुछ चेंजेस होने वाले हैं, घर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं. Doris enters left and she is in the process of dressing and is now wrapping a wrap, wearing a wrap. Wrap means kind of maxi. She was wearing a maxi and she looks pale and red-eyed. रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसका फेस डल हो जाता है. डोरिस उसको नोटिस करता है और उसको पूछता है कि क्या हुआ. मिसेस पियर्सन कहती है, यू लुक टेरिबल, आई वोंट वियर दैट फेस इवन फॉर 40 पेंस. तो उसको कहती है अगर मुझे 40 पेंस के साथ भी जाना होता तो मैं कम से कम ऐसा फेस लेकर तो नहीं जाती. मूविंग अबाउट द टेबल एंग्रीली, ओह शट अप अबाउट 40 पेंस एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, जस्ट ड्रेसिंग, एंड इफ आई डू लुक terrible, it's your fault. You made me cry. Cyril, why? What did she do? Never you mind. Rising and preparing to move to the kitchen. Have we any stout left? I can't remember. Bottle or two, I think. But you don't want stout now? Moving less slowly, I do. What for? Turning at the door. To drink, you clot. कहती है कि जैसे ही डोरिस किचन में जाने लगती है कुछ बनाने के लिए, तो डोरिस और सिरिल दोनों आपस में बात करने लगते हैं और मिसेस पियर्सन से पूछती है कि क्या आज हमारे घर स्टाउट है. स्टाउट मीन्स अ काइंड ऑफ बेवरेज लाइक विस्की एंड वाइन. एंड सिरिल सेड नो, वी आर हैविंग बॉटल और टू जस्ट. एंड देन he said what she needed for that bottle. Then Mrs. Pearson said she wanted to drink it. And Mrs. Pearson exits right. Instantly, Cyril and Doris are in huddle, close together at left center, rapidly whispering. एक दूसरे से बात करते हैं वो भाई बहन और कहते हैं कि Has she been like that with you too? Doris कहती है कि तुम्हारे साथ भी उन्होंने ऐसी बात की. Yes, no tea ready, couldn't care less. Well, I'm glad it is both of us. I thought I had done something wrong. सिरिल कहता है कि हाँ, चाय भी नहीं बनी और केयर भी नहीं कर रही हैं, सामान भी नहीं निकाला है, that and this and that. तभी डोरिस कहती है कि यस, मुझे खुशी है कि हम दोनों के साथ ऐसा हुआ है, मुझे लग रहा था कि मैंने ही कुछ गलत कर दिया है. सो डिड आई, बट इट्स हर ऑफ कोर्स. नहीं, ये उन्होंने कुछ ऐसा किया है. शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन. आई कुडंट बिलीव माई आईज. वो कार्ड्स खेल रही थी और स्मोकिंग कर रही थी जब मैं अंदर आई, एंड मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई. I asked her if she was feeling of colors and she said she wasn't. तो कहता है कि मुझे लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, but she said no, ऐसा कुछ नहीं है. Well, she is suddenly all different and that's what made me cry. It wasn't what she said, but the way she said it and the way she looked. कहती है जो उन्होंने कहा उसके लिए मुझे गुस्सा नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने कहा और जिस तरीके से उन्होंने देखा वो बहुत बुरा लगा. Haven't noticed that she looks just the same to me? She doesn't to me. Do you think she could have hit her head on something, and got what is it? कहते हैं कि मुझे लगता है कि उन्होंने अपना सर जो है किसी दीवार में दे मारा है और वो अब फूल्स की तरह, मतलब मूर्खों वाली हरकतें कर रही हैं. Do you mean she is barmy? तुम्हें लगता है कि वो फूल है, वो एक मूर्ख बन गई है? No, you fat head. कहते नहीं, fat head means जिसका दिमाग ना हो, बद दिमाग. तो कहते no, you fat head. Confusion. She might have. हो सकता है कि उनकी जो याददाश्त है वो थोड़ी सी, शायद उस पर कुछ असर पड़ा है. Sounds far-fetched. Well, she is far-fetched if you ask me. Suddenly begins to giggle. और दोनों आपस में बात करके हंसने लगते हैं. Now then, what is it? If she is going to be like this when dad come home, giggles again. और कहते हैं कि अगर जब डैड घर आएंगे तब अगर वो ऐसा ही बिहेव करती हैं तब क्या होगा. और दोनों ही अपनी अपनी बात करके हंसने लगते हैं. Begins to go off. I am staying in. मैं तो यहीं रुकने वाली हूँ. That two front dress circles of the first house. And then after Mrs. Pearson and she was taking the stout in her cup. She was sitting at the
table and Cyril and Doris was talking to each other. In the next video, we will see when Mr. George will come home, how she will behave with him. Till then, take care and goodbye.